Hello friends, I am Professor Nancy Kanzabra and we are studying the subject cyber law and ethics. In previous section we studied about the some law and we studying about the IT Act 2000, which is the first law which is invented in India regarding the cyber activities or the crime happened because of the cyber activities. So, in this particular session, we are going to study about the legal recognition of electronic records. In previous session, we study about the e-governance, how e-governance is useful and how e-governance is uh, taking place in our day-to-day life, and it is impactful to normal people or a rural people कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनको ई गवर्नेंस कैसे हेल्प कर रहा है. There are some points key businessmen needs also e-government support, and even government also needs the use of the e-governance. So we study about that in previous lecture. So now we are going to study the legal recognition of electronic records. You are now very well about the electronic signature, digital signature, and e-governance. So what are the importance of the legal recognition of electronic records or legal recognition of digital signature records, and why we need this legal recognition? So in our Indian Act 2000, Section 4 provides for the legal recognition of electronic records, which is providing us that if any law requires some particular information or that matter should be written in the typewriter or a printed form to fulfill such requirements that shall be dependent or that should be satisfied, it is which is in electronic form. So for that thing we need this kind of the legal recognition in our electronic records. So in IT Act 2000, there is electronic records law in the section 4, जो किसके लिए यूज किया जाएगा कि इट प्रोवाइड्स अस एन लीगल फ्रेमवर्क कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के थ्रू कोई एक्टिविटी स्टोर की जाती है, जैसे कि हमारे फाइल स्टोर होंगे, हमारे इमेजेस स्टोर होते हैं, आपके वीडियो स्टोर होता है. सो उन चीजों के लिए वो जो रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है उनको सिस्टमेटिकली उस सिस्टम में कंट्रोल करने के लिए या तो उसको ऑडिट करने के लिए हमें इस रिकॉग्निशन की लीगल रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है. एंड अगर हम ये लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं एंड जो हमारे रिकॉर्ड्स है उस पे अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट अप्लाई करते हैं, सो आफ्टर दैट हाउ इट वर्क्स कि द एक्ट states the useless sorry unless otherwise agreed, and acceptance of the contract may be expressed by the electronic means of the communication, and the same shall have a legal validity and enforceability. मीन्स कि जो हम जो भी स्टोर कर रहे हैं, जिस काइंड में जिस फॉर्म में भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उस डेटा को वो वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा, उस डेटा को वो इन्फोर्सेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू एन पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो उसको स्टोर एंड एक्सप्रेस करने में भी हेल्प करेगा. मीन्स कोई अनऑथेंटिकल अनरिलायबल डेटा होगा, अगर वो ये इलेक्ट्रॉनिक्स लीगल रिकॉग्निशन में फुलफिल नहीं हो रहा होगा तो वो उसको वैलिड नहीं करेगा और उसको स्टोर करने नहीं देगा. सो लीगल रिकॉग्निशन इज रिक्वायरमेंट टू secure our data, to get the validity of our data, to fulfill the enforceability of our data. तो इसके लिए हमें लीगल रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे. नाउ जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे हमें लीगल रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है, सिमिलरली वी नीड ए लीगल रिकॉग्निशन इन our digital signatures too. Okay, so for digital signatures as well as the electronic records, उन दोनों के legal recognition को consider किया गया है सेक्शन 3 में. IT Act 2000 के सेक्शन 3 में they gives an legal recognition to electronic records and the digital signatures. So we already study about the digital signature, why we need digital signature and how digital signatures are different from the
सिंपल सिग्नेचर्स विच वी आर डूइंग ऑन द पेपर्स, उन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है और डिजिटल सिग्नेचर्स को क्यों प्रेफरेंस देना चाहिए। ये जो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है वो दो फॉर्म में होता है। तो जो इसका फर्स्ट फॉर्म है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द मैसेज, मींस कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो जब भी कन्वर्ट होता है डिजिटल सिग्नेचर में, आपका नॉर्मल सिग्नेचर है उसको डिजिटल सिग्नेचर में कन्वर्ट करता है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि आपका जो भी मैसेज है उसको एक मैथमेटिकल फंक्शन हैश फंक्शन के साथ अटैच कर दिया जाता है, ताकि आपकी जो इंटीग्रिटी है उस कंटेंट की, आपके सिग्नेचर की और आपके डेटा की, डिजिटल सिग्नेचर मीन्स कि आप अपने डेटा पे एक की लगा रहे हो, तो उस पे हम एक हैश फंक्शन अप्लाई करता है। उस हैश फंक्शन के थ्रू आपका जो डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो क्या हो जाता है, डिजिटली फ्रीज हो जाता है और उस डेटा की एक इंटीग्रिटी क्रिएट हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो डेटा है, उसको हम इजीली टेम्पर नहीं कर सकते। मीन्स इफ any tampering with the content of the electronic record will immediately invalid the digital signature की, अगर उसके साथ किसी ने वहां पे छेड़खानी किया, कोई टेम्परिंग करने का ट्राई किया आपके उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ जिस पे आपने डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया है, तो अपने आप बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेप दिस हैश फंक्शन यूसेज वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट स्टेप इज completed, second step is going to apply, and in second step what happen कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, वो प्रोसेस के थ्रू पास होगा। मीन्स कि आपका सपोज कंसिडर इट कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मीन्स आपका एक पीडीएफ फाइल है, उस फाइल पे आपने डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई किया है। नाउ डिजिटल सिग्नेचर का फर्स्ट स्टेप था that is completed, so after that second phase में वो क्या अप्लाई करेगा कि उस पे एक ऑथेंटिकेटेड प्राइवेट की अटैच करेगा। मीन्स कि वो प्राइवेट की जिसने अटैच किया है उसी को पता होगा, और जब उसको डिक्रिप्ट करना होगा सो आइदर उसी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर पाओगे, आइदर पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर पाओगे, बट वो जो पब्लिक की है वो उस प्राइवेट की के साथ मैच होनी चाहिए, देन एंड देन वी कैन डिक्रिप्ट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इन दैट केस आपका जो टेम्परिंग वाला प्रॉब्लम है या तो टेम्परिंग वाला इशू है दैट इज फिक्स्ड बाय द डिजिटल सिग्नेचर। so the digital signature works in this two steps, and these two steps consider under the legal recognition of digital signature, and which is described in the section 3 of IT Act 2000। ये वही चीज है कि हम ये IT Act 2003 में ये जो सेक्शन ऐड किया गया है, सेक्शन 3 रिगार्डिंग अवर लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, और उसमें कौन से टेक्निक्स यूज होती है, कौन से प्रोटोकॉल्स आप यूज कर सकते हो, एंड इफ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स in our day-to-day life, so how much security is important, what are the scope or what are the requirement we need to secure our electronic record in our digital signature, that is considered in the legal recognition। और similarly जैसे हमने डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, उसका लीगल रिकॉग्निशन यूज किया है, वही चीज हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस पे और ई गवर्नेंस पे उस पे भी यूज की जाती है कि लीगल रिकॉग्निशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एंड सिग्नेचर्स का, उसको प्रोवाइड करने के लिए वी नीड लीगल रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो ई गवर्नेंस के थ्रू हो रहा है। ई गवर्नेंस के थ्रू जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स जनरेट हो रहा है, डिजिटल सिग्नेचर्स जनरेट हो रहा है, उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सपोर्ट कराने के लिए आपको उसको भी मीन्स ई गवर्नेंस को भी और इन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को भी आपको लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना होगा। सो this portion means legal recognition of electronic governance deal with the under section 4 to 10A of IT Act 2000।
and बिटवीन दिस सेक्शंस की सेक्शन 4 टू सेक्शन 10 उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है कि अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, या तो उसको क्रिएट कर रहे हो, उसको रिटेन कर रहे हो, उसको प्रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उसको इशू या बिल के लिए ग्रांट करवा रहे हो, लाइसेंस के लिए या परमिट ले रहे हो, ओके या किसी पर्टिकुलर पेमेंट आपने किया है उसका परमिट या उसका रिसिप्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेज और गवर्नमेंट एजेंसीज, तो वो सारी चीजें एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हुई। तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स है उसको सिक्योरिटी चाहिए, मीन्स ई गवर्नेंस फॉर्म जो है उनको लीगल रिकॉग्निशन की जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट हुआ है उसकी सिक्योरिटी लीगल रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट है। सो उसके लिए सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10A तक में कुछ टर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक लीगल रिकॉग्निशन को कैसे कंसीडर करना है वो सारी चीजें वहां पे मेंशन की है कि आपका फॉर्म डिजिटली है या तो आपका फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली है या आप टाइप रिटर्न फॉर्म में है, तो उसको कैसे सिक्योर करोगे, दैट इज कम्स अंडर द सेक्शन 4। देन सेक्शन 5 में क्या चीज है, हमारे डिजिटल सिग्नेचर कंटेंट के रिलेटेड है कि उसकी उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको कितनी इंफॉर्मेशन मैटर करेगा, उसको कितना ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करना चाहिए उस सिग्नेचर को अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है। तो और वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, वो सारी चीजें आएगी सेक्शन 5 के अंडर। देन सेक्शन 6 के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का जो फाउंडेशन है उसके रिगार्डिंग चीज है कि जो मैंने अभी बताया कि आप कोई एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो कि फॉर्म फिलअप करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसको रिटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिस से कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या कोई लाइसेंस का परमिट दिलवा रहे हो, तो वो चीजें करना। सो वो सारी चीजें आएंगी 6 में, सेक्शन 6 में। देन 6A में क्या आएगा, इन अ सेक्शन 6A we talk about the service provided as the appropriate government may authorize any service provider and vary charges as they think fit, okay। देन सेक्शन 7 में हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, हमारे रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग और एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए कोई रिकॉर्ड जनरेट किया गया है या उसको रिटेन किया गया है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको प्रोवाइड किया गया है, सो उसकी ओरिजिनलिटी के रिगार्डिंग जो चीजें हैं वो सेक्शन 7 में कंसिडर की जाएगी। एंड इन सेक्शन 8 हमारे जो ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसकी चीजें, उसका लीगल रिकॉग्निशन, सब चीजें सेक्शन 8 में कंसिडर की गई है। So that is about the legal recognition of electronic records, digital signatures and e-governance. So जब ये हमारी चीजें कंसिडर हो रही है, so in that we can focus on the 9 pillars of digital India कि अभी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, so उसको हम ये सारी चीजें हम क्यों यूज करेंगे, टू मेक आवर कंट्री digitalize, make our country and quite useful। so उसमें हम 9 pillars of India को कंसिडर करें, so मोदी जी ने ये 9 pillars of digital India पिक्चर में लाया है। सो उसमें क्या चीजें इंक्लूड हो रही है, सो ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम्स, ई गवर्नेंस which is already taking place, IT jobs, information, early harvest, electronic manufacturing and e-क्रांति इलेक्ट्रॉनिक्स में, राइट। तो ब्रॉडबैंड हाईवे मीन्स कि जो हमारे कुछ रूरल एरियाज है या कुछ अर्बन एरियाज है यहाँ पे अभी भी नेट की फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, इवन सम पीपल और some children don't know about that the internet world is existing in our India, within our India। तो ये जो कंपोनेंट्स है हमारे अर्बन के, रूरल के, उन सबको एक साथ कंबाइन करके मोर देन 250,000 विलेजेस को, पंचायत को वो कवर करना चाहता है, ओके। एंड हमारा कम्युनिकेशन इजी करना चाहता है।
and they want to develop over India. Okay, so that are their plans for the broadband highways कि हर जगह पे इंडिया के जितने भी villages है, जितने भी urban areas है, जितने भी rural areas है, वहाँ पे नेट पहुंचे, वहाँ पे वो लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज करें और हमारे कंट्री को आगे लाए. सेकेंड वन इज यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन्स. सेम थिंग, जैसे ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है वैसे भी काफी जगह पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी नहीं है. okay? और काफी लोगों के पास फोन नहीं है, उनको पता नहीं कि टेक्नोलॉजी क्या है, फोन क्या है, इंटरनेट क्या है, उसको यूज कैसे करना है. सो दे डोंट नो अबाउट दिस थिंग इज एग्जिस्टेड इन दिस वर्ल्ड. सो वो यूनिवर्सल एक्सेस टू द फोन्स की हर एक जगह से हर कोई कनेक्ट हो सकता है, उनको यूज कर सकता है और उसको बेटर बना सकते हैं. हम इसके लिए यूज करना चाहते हैं पब्लिक इंटरनेट, क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल और communities who cannot afford the इंटरनेट. तो पब्लिक इंटरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं और काफी जगह पे हमें पब्लिक इंटरनेट यूज करने मिलता है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे देखो, काफी बस स्टेशन पे भी अवेलेबल होता है, जो डेवलप्ड हो गया है. और मेट्रोज पे इंटरनेट की फैसिलिटीज, वाईफाई की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. सेम थिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मीन्स टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट की, जो हम कुछ चीजें हैं दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, राइट. सो दे वांट टू फोकस इन कि हमें वो चीजें इम्पोर्ट ना करनी पड़े, विद इन द इंडिया वो चीज हमें अवेलेबल हो सके या तो हम हमारे पीपल तक पहुंचा सके, राइट. देन e-kranti in electronics means delivery of services in terms of everything, कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के लिए यूज करना चाहता है, ई एजुकेशन, हेल्थ के लिए ई हेल्थ केयर, फिर फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं वैसे कि उनके जो कैश प्रोवाइड होते हैं, उनको जो लोन प्रोवाइड होता है, उनको कुछ पेमेंट होता है, वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम कंडक्ट कर पाए. So technology for farmers, technology for security, technology for financial inclusion, even technology for justice to technology for planning and technology for better security. So उन सभी के लिए वो 9 pillars of digital India का कंसेप्ट लेके आए थे और उसको इम्प्लीमेंट में ला रहे हैं, एंड ताकि हम हमारे कंट्री को वो बेटर न्यू नेक्स्ट जनरेशन दे पाए, राइट. इंफॉर्मेशन के टर्म्स में देखो तो इंफॉर्मेशन मीन्स कि वो हर एक जगह पे ट्रांसपेरेंट, जितना बेसिक इंफॉर्मेशन है या तो दे कैन प्रोवाइड इट उतना इंफॉर्मेशन वो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि कुछ ऐसे डेटा प्लेटफॉर्म्स होंगे, कुछ ऑनलाइन होस्टिंग्स होंगी जिसके थ्रू वो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाएंगे और शेयर करेंगे और कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एंगेजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू सिटीजन्स के बीच में लाया है, विच इज mygovernment.in, which has already been launched as a medium to exchange ideas or suggestions with government, and it will facilitate two-way communication between citizens and the government, so it would be very helpful. And the IT jobs means they are putting this concept of the IT jobs means कि 1 crore students from the smaller towns and villages will be trained for the IT sector jobs over the 5 to 10 years, and we can use this enhanced stream. So this is all possible because of the digital India concept means the existence of our cyber world, cyberspace. So to prevent or to secure all of the things, we need some particular cyber laws. Okay, and some of the laws already invented and some of the laws already using in day-to-day life, and one of them is IT Act 2000. Okay, so this is all about why we need legal recognitions in our cyber security or cyber law, key to secure our data and कोई outsider person, unauthenticated person or a hacker couldn't hack that data and
वी कैन प्रिवेंट, अगर उसको वैलिडिटी हम देंगे, उसको हम अगर ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेंगे, उसको लीगल रिकॉग्नाइज करेंगे विद द पर्टिकुलर लॉज, तो उसके साथ छेड़खानी नहीं हो सकती. फॉर दैट वी नीड legal recognition on electronic forms, electronic records, digital signatures, and the legal recognition of e-governance. Okay, if you guys have any questions and doubt regarding this, you can put your question in below comments. Thank you so much.